हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.9, क्वेश्चन नंबर 1। So in question number 1, as you can see, these all are simple question, we can easily solve it. Say, to solve the first question, let me integrate x plus 1 by x square plus x square by 2 plus x with the limit minus 1 to 1. So if we give the limit, if we give upper limit, then it become 1 by 2 plus 1 minus lower limit, it is also 1 by 2 minus 1. So that is equal to, if we can cancel, if it is possible to cancel, then first of all we always need to cancel, so that remaining calculation becomes so easy. Here 1 plus 1, that is 2. So the answer of first question is 2. Now let us integrate 1 by x. 1 by x when we integrate by log x, okay, log mod x with the limit 2 to 3. Now that is equal to log 3 minus log 2, that is equal to log 3 by 2. Okay, third question, let me integrate this one. For x cube, that is 4 into x raised to 4 by 4 minus 5 into x cube by 3 plus 6 into x square by 2 plus 9x. ठीक है, limit is 1 to 2. Now if possible we should have to cancel first, that is 4 cancel, 2 3 are 6. Okay, and now let me put the limit. As we put upper limit, 2 raised to 4 minus 5 by 3 into 2 raised to 3, which is 8, plus 3 into 2 raised to 4, which is 4, sorry, 2 raised to 2, it is 4, and plus 9 into 2, that is 18, minus lower limit 1 minus 5 by 3 plus 3 plus 9. Okay, if it is possible, if we can cancel it something. No, there is not at all any kind of possible cancellation now. So we have to put all the values, and let me take LCM of this two. ये दोनों को अगर मैं साथ में रख देता हूँ तो, एंड बाकी सब कुछ साथ में रखता हूँ तो 2 raised to 4 which is 16, 4 plus 4 3 is 12 plus 18 minus 1 minus 3 minus 9. ठीक है, minus 3 minus 9, एंड ये हो जाएगा plus 5 by 3. ठीक है, plus 5 by 3, and this one become minus 8 5 जा 40 by 3. ठीक है, so that is 12 plus 18 30, 30 plus 16 46, 46 minus 1 45, 45 minus 3 42, 42 minus 9, it is 33. So 33 plus ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई, 5 minus 40 which is 35 but negative, so negative 35 by 3. ठीक है ना, and if we have not done any calculation mistake, then our answer would be 33 3 is 99 minus 35 divided by 3, and that would be 64, है ना, 64 by 3. So answer would be 64 by 3. Okay, let us solve question number 4. इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x. साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos 2x divided by 2, limit will be 0 to pi by 4. Now obviously constant will be, constant we always need to put outside, so whatever remaining term are there, which is cos 2x having limit 0 to pi by 4. Now let us give the upper limit minus lower limit. So cos 2 into pi by 4, which is cos pi by 2 minus cos 0. So the answer would be, cos pi by 2 is 0, cos 0 1, so answer would be minus 1 by 2 for the fourth question. Now let's solve fifth question. Integration of cos 2x is sin 2x by 2, and don't forget this coefficient of x.
है ना, हमेशा ही उसको याद रख के डिनोमिनेटर में रख देना है, भूलना नहीं है भाई। सो दिस बिकम 1/2 इंटू साइन 2x का पाई बाई लिमिट, साइन 2x की लिमिट हो गई 0 to π/2। नाउ इफ वी कैन गिव लिमिट्स 1/2 साइन 2 इंटू π/2 विच इज साइन पाई माइनस साइन 0। So as we know that sin pi and sin 0 both are having value 0. So 1/2 0 minus 0 which is 0. So final answer is 0. Okay. Now let me integrate e raised to x. E raised to x can be integrated by e raised to x having limit 4 to 5. So answer would be e raised to 5 minus e raised to 4. Okay. And I don't think so और कोई simplification हो सकता है। If you want you can do what, e raised to 4 को कॉमन निकाल सकते हो, है ना। सो ये बन जाएगा e raised to 4 इंटू e माइनस 1। सो माइट बी योर आंसर वुड बी लाइक दिस और लाइक दिस, ये दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा, बट ये दोनों में से कोई एक तो आना ही चाहिए भाई, ठीक है। वैसे है सिंपल, तो आप आराम से ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस इंटीग्रेट 10x। 10x का इंटीग्रेशन है क्या है भाई, sec स्क्वायर x, है ना। नहीं, sec स्क्वायर तो उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या है भाई, log mod sec x, है ना, log mod sec x। तो रख देते हैं, चलो log mod sec x हैविंग लिमिट 0 to π/4, ठीक है। तो चलो अपर लिमिट देते हैं, log mod sec π/4 माइनस log mod sec 0, ठीक है। sec π/4 की वैल्यू क्या होगी भाई, √2। सो log √2 माइनस sec 0 1 होता है ना, log 1। log 1 की वैल्यू तो हमेशा ही 0 होगी, सो इट बिकम ओनली log √2। एंड log √2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज log 2 raised to 1/2। 1/2 इफ वी पुट इन अ कोफिशिएंट आगे अगर रख दे तो 1/2 log 2, सो इट कैन बी रिटन एज log 2/2। like this also we can write. okay, so your answer would be, आपका आंसर अगर ये बनाओ तो चलेगा, ये मतलब ये दोनों में से कोई एक आध रखोगे तो चलेगा। दैट इज व्हाट द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 cosec x का इंटीग्रेशन, पहले तो क्या होता है cosec x का इंटीग्रेशन, log mod cosec माइनस cot, आई थिंक यस, है ना। सो द आंसर वुड बी log mod cosec x minus cot x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, लिमिट π/6 to π/4। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं अपर लिमिट देता हूं तो log cosec π/4 कितना होगा भाई, डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूं, cosec π/4 √2 माइनस cot π/4 1, ठीक है। तो √2 माइनस 1 तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, सो नो नीड टू पुट दी मोड साइन, है ना, क्योंकि √2 माइनस 1 का मोड √2 माइनस 1 ही होगा। सो विल कैंसिल दिस मोड साइन इन द नेक्स्ट स्टेप। माइनस ये हमने अपर लिमिट दे दी, अब लोअर लिमिट देते हैं, log mod cosec π/6, cosec π/6 मतलब sin π/6 का वो रेसिप्रोकल, दैट इज 2 माइनस cot π/6 विच इज 1/√3, cot π/6 इज √3। सो अगेन इसमें भी 2 एंड 3 में कौन बड़ा है, 2 है, सो इट मीन्स 2 - 3 अगेन बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, so we don't need to put modulus sign over here also. So in the next step what we are going to write, log √2 minus 1 like this minus log 2 minus √3। if you want you can divide it, है ना, एक दूसरे के नीचे डिवाइड कर सकते हो, √2 minus 1/2 minus √3। and if you want we can we can take rationalization also, है ना, बट आई थिंक यहाँ तक आंसर रखना सही रहेगा, इसके आगे फिर हम बढ़ाते रहेंगे तो फिर ये तो बढ़ता ही रहेगा, है ना। सो बेटर वी कैन कीप आवर आंसर लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन नंबर 9 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? साइन इनवर्स एक्स, यस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई 1, ये 1 है ना, 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 1, लिमिट 0 to 1, लेट मी गिव द लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 इज 0, सो फाइनल आंसर विल बी पाई बाई 2, खत्म। नंबर 10, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद करो 1 अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन में? 1 अपन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, यहाँ पे ए कौन है? 1 है, सो वी डोंट नीड दिस वन एंड दिस वन, सो इट बिकम टेन इनवर्स एक्स, ओके, सो फॉर्मूला इज टेन इनवर्स एक्स। या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हो कि टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इट मीन्स कि 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ही होगा। सो लेट मी पुट टेन इनवर्स एक्स with limit 0 to 1. Now giving limit, upper limit tan inverse 1 minus lower limit tan inverse 0. Tan inverse 1 equal to pi by 4, tan inverse 0 again 0, so answer is pi by 4. And question number 11, 1 upon x square minus 1. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? फॉर्मूला याद है ना, 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था भाई? 1 अपन 2a log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, लाइक दिस, है ना। सो यहाँ पे भाई 1 अपन 2a, a मतलब 1, है ना, a मतलब 1, दिस वन इज 1, सो 1 अपन 2a, a मतलब 1 इंटू लॉग mod x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, a मतलब 1, ठीक है। अब प्लस सी इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेफिनेटली कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट कैंसिल होता है समझ लो, से लॉग से कोई भी आंसर है, किसी भी इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा, समझ लो हमने यहाँ पे आंसर बना लिया प्लस सी लिखा, बराबर। अब लिमिट समझ लो ऊपर वाली नीचे वाली, ये दोनों लिमिट देते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट देते हैं तो समथिंग प्लस सी, माइनस लोअर लिमिट देते हैं तो समथिंग प्लस ए, है ना, सॉरी समथिंग प्लस सी। हमने इसमें लिमिट दी, डेफिनेटली जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पे लिमिट देंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे बी के फॉर्म में आंसर बनेगा एफ ऑफ बी, और यहाँ पे एफ ऑफ ए के फॉर्म में आंसर बनेगा, नीचे वाली लिमिट देंगे, बट दोनों टाइम सी सी तो एज इट इज रहेगा, बोथ सी विल बी कैंसल, लाइक दिस ऑल्सो वी कैन थिंक। सो डेफिनेटली कांस्टेंट बचेगा ही नहीं, सो वी डोंट नीड टू पुट कांस्टेंट साइन इन डिफाइनाइट इंटीग्रल, दैट इज व्हाट वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि डिफाइनाइट इंटीग्रल में कांस्टेंट सी नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, बट we always need to keep in our mind that c is not there in definite integral. Now let me give upper limit, 1/2 को बाहर रख दिया, अपर लिमिट रखने पे log 3 minus 1 by 3 plus 1 which is 2/4, है ना, that is 1/2 माइनस log नीचे की लिमिट देंगे तो 2 minus 1/2 plus 1 which is 1/3, है ना, 1/3, so it become like this. And finally if you want our answer, log a minus log b, that is log a by b, okay, so it become 1/2 log 3/2, that is what your answer for this question. Okay, let us solve the question number 12. So in question number 12 we need to integrate cos square x. cos square x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होगा, आपको भी पता है। If you want to integrate cos square x, we always need to convert it in this format, 1 plus cos 2x by 2, है ना, 1 plus cos 2x by 2 dx. So 1/2 आगे 1 plus cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x and cos 2x का sin 2x by 2, ठीक है। Now let us give the limit, π/2 अंदर देने पे x की जगह π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 मतलब साइन पाई होता है ना, सो इट बिकम साइन पाई विच इज 0 एक्चुअल में, बट फिर भी मैंने लिख दिया, चलो एक बार, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पे लिमिट दी है ऊपर वाली। अब नीचे वाली लिमिट देने पे x की जगह 0 रख देते हैं, 0 प्लस साइन 0, ठीक है, साइन 0, नाउ 1/2 इंटू π/2 प्लस 0
बाकी सब कुछ तो ज़ीरो ही है देखो, है ना। सो फाइनल आंसर विल बी पाई बाय 4, पाई बाय 4। ओके, लेट्स हैव 13, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ x by x square plus 1 limit 2 to 3. Okay, so in this question what we can see, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है मुझे, है ना। बस मुझे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करना है एंड 2 डिवाइड करना है। ओके, सो व्हाट आई कैन सी, 1/2 इंटू 1/2 तो आगे एज इट इज, नीचे का डिफ्रेंशिएशन x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे है भाई, 2x यहाँ पे है। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो फॉर्मूला क्या है भाई, लॉग मॉड डिनोमिनेटर, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको याद होगा, एफ डैश एक्स बाई एफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, है ना। तो इसको याद रखना भाई, लिमिट 2 to 3। नाउ लेट मी गिव टू बोथ द लिमिट, अपर लिमिट देने पे log 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 log 10 माइनस लोअर लिमिट देने पे 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 1 5, so it become 1/2 log 5 10 minus 5, so it become log 10 by 5 which is log 2, 1/2 log 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, मतलब मैंने करवा दिया है ऑलरेडी, बट अगर भूल गए हो तो याद रखना। ओके, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x plus 3 by 5x square plus 1। वेल इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, ये एक तो समझ लो आपके पास ऊपर लीनियर है एंड नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाली जो मेथड हमने स्पेशली सिखाई थी उस मेथड से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो पूरा का पूरा परफेक्ट फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट पूरा का पूरा नहीं है, मतलब ये वाला बीच वाला टर्म नहीं है। सो अगर बीच वाला टर्म नहीं है, मतलब इस तरह का फॉर्म है, तो हमको ये इस पर्टिकुलर मेथड से जाना जरूरी नहीं है, है ना, क्योंकि ये मेथड में प्रोसीजर बड़ी है, वी नीड टू यूज द बिग प्रोसीजर टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूजिंग दिस मेथड। सो अगर मिडल टर्म नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म नहीं है, तो इसमें वो परफेक्ट स्क्वायर बना के, जैसे ये मेथड में परफेक्ट स्क्वायर बना के हमको आगे सॉल्व करना होता था, वो सब करके इस मेथड से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब डायरेक्टली कैसे करना है, तो डायरेक्टली करने के लिए जैसे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाली मेथड आप खुद कर लेना, ट्राई कर लेना बरा। मेथड 1 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ऐसा लिख देता हूँ मैं, सो यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ। एक स्पेशल हमने जो एक्सरसाइज में इसी तरह के इक्वेशन सॉल्व किए थे, उसमें मोस्टली ऐसे इक्वेशन थे, से 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इंटीग्रेशन इसका करो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं जिसमें ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक टर्म था, तो इसमें हमने नीचे वाले का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर इक्वल टू समथिंग इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस समथिंग, ऐसे फॉर्म में पहले मैंने न्यूमरेटर को कन्वर्ट किया था और हमने वो पूरी की पूरी मेथड सीखी थी, बराबर। सो आई एम नॉट रिवाइजिंग ऑल दिस टेक्निक राइट नाउ, क्योंकि अगर रिवाइज करना चाहते हो तो तुम आगे का वीडियो देख सकते हो, एंड इफ़ यू रिफर द कंटेंट विच वट एवर यू हैव रिटन इन योर बुक, आपने जो भी लिखा है बुक में, आपकी फेयर बुक में जो भी लिखा है वो सब भी रिफर कर लोगे तो भी आपको याद आ जाएगा भाई कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में कैसे करना होता है, ठीक है। बट एज सच देर इज नो परफेक्ट क्वाड्रेटिक टर्म, देर इज नो मिडल टर्म, इट मीन्स व्हाट कि वी हैव ओनली फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, वी कैन डायरेक्टली डू इट बाय यूजिंग सेपरेशन, डिनोमिनेटर सेपरेशन। तो अब डिनोमिनेटर सेपरेशन से कैसे करते हैं देखो, 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। सो एज यू कैन सी, अब ये जो वाला है ना, ये वाला तो आगे जो हमने देखा था क्वेश्चन इसके जैसे ही बन गया, देखो सम सिंगल टर्म बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने एनी हाउ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट कर लिया, तो वही मैं यहाँ पे सोचूंगा, एनी हाउ नीचे का डिफरेंशिएशन मैं ऊपर सेट कर दूंगा। सो नीचे क्या है 5x स्क्वायर प्लस 1, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 10x। तो अगर मुझे ऊपर 10x बनाना है देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो लेट मी कैलकुलेट इट,
and having limit 0 to 1. Limit is 0 to 1. We have to write limit in each of the step, and we have to write dx also in each and every step. Okay, लिमिट नहीं लिखोगे तो भी उसका मार्क्स कट हो सकता है. So we have to write limit and dx. These two things always we need to write. Okay, so this is equal to, यहाँ पे से 0 to 1, ये 1/5 नीचे का, ठीक है, नीचे का 5 को यूज़ नहीं करना है, एंड ऊपर 10x है, नीचे 2x² + 1 है. ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, प्लस यहाँ पे 3/5x² + 1. तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, चलो, √5x² + 1² like this, so that it can be converted into this form under 1/x² + a² फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए. ओके, नाउ लेट मी अप्लाई द लिमिट 1/5. नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो log mod डिनोमिनेटर, ओके, +3 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन है ना, इसका स्पेसिफिकली इसका डिफ्रेंशिएशन 1/something का 1/x + a² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला के हिसाब से 1/a, a मतलब 1 है, ठीक है, यहाँ पे a मतलब 1 है, इंटू tan इनवर्स x/a √5x/1, एंड x का कोफिशिएंट विच इज √5 वी हैव टू डिवाइड. So like this we need to write. Now limit is 0 to 1. ठीक है, limit is 0 to 1. Okay. Now let us give the limit. और कुछ सिंप्लीफाई किए बिना लिमिट ही दे देते ताकि स्टेप ही कम करने पड़े, स्टेप ही कम लिखने पड़े. सो 1/5 अपर लिमिट देने पे x की जगह 1 रखना है. log mod 2 into 1 that is 2 + 1 that is 3 plus 3/√5. ठीक है, 3/√5, tan इनवर्स √5, x की जगह मैंने 1 रख दिया, माइनस, अब x की जगह 0 रखने पे 1/5 log, यहाँ पे 0 रख दूंगा तो आंसर 1. सो 1/5 log 1, एंड एज वी नो दैट log 1 is 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 0, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 इंटू 0, x की जगह 0 रखने पे 0. सो पीछे के दोनों स्टेप तो डेफिनेटली 0 हो गए, जैसे tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 एंड log 1 इज ऑल्सो 0. सो डेफिनेटली ये दोनों 0 हो गए. तो अब बचा क्या, जो भी बचा वो आगे वाला स्टेप बचा, दैट इज 1/log 3 + 3/5 tan इनवर्स √5. सो दिस इज 1/5 log 3 + 3/5 tan इनवर्स √5. आई थिंक यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत दिख नहीं रही है मुझे, है ना. एंड आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक की है, यहाँ पे log 6 आना चाहिए, तो ये तो हमने गलती कुछ नहीं की है. अच्छा हाँ, क्वेश्चन में 5x² + 1 है और हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक 2x² + 1 लिख लिया, बराबर. सो ये एक्चुअल में 5x² + 1 है, सो यहाँ पे भी 5x² + 1 आएगा, ठीक है. एंड सो दैट in this one become 5 into 1 + 1 that is 6, so ये 6 हो जाएगा, एंड बाकी सब कुछ एज इट इज़, ठीक है. पीछे की लिमिट में तो 0 ही है, सो बाकी सब कुछ ओके. log 6 तो यहाँ पे भी log 6, सो दिस वन इज गोइंग टू बी 6, है ना, ये आपका 6 है. ओके, सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14. यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ विद द मेथड 1, है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की मेथड से भी कर सकते हो, उसमें भी ऑलमोस्ट इतनी से तो ज़्यादा ही स्टेप हो गए मेरे ख्याल से, है ना. एंड लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15. x e⁻x² dx. ओके, कैसे करें इसको सॉल्व, x e⁻x² dx. तो दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, एक x है, एक e⁻x² है, दोनों अलग अलग तरह के फंक्शन है. बट मैंने क्या बताया था, जनरली जब भी e⁻ के पावर में x की जगह कुछ नया टर्म आ जाए, जैसे e⁻sin x है, cos x है, e⁻tan x है, e⁻x² + 1 है, कुछ भी, तो हम उसी को सोचेंगे t एज्यूम करने के बारे में, है ना. सो लेट मी एज्यूम दिस x² = t. अब ये तो सब्सटीट्यूशन मेथड है, एंड सब्सटीट्यूशन मेथड तुमको आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़नी है, तो कोई बात नहीं, आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़नी है तो हम अभी पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई स्पेशल खास बात है नहीं. सब्सटीट्यूशन मेथड में हमने ऑलरेडी जो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में पढ़ लिया है
वही करना है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि लिमिट भी चेंज करनी है ना। सो लेट मी एज्यूम एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स डी एक्स में मुझे एक्स डी एक्स के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो रहा है। देखो 2x dx इक्वल टू डी टी। सो अल्टीमेटली एक्स डी एक्स मेरे पास है एंड दैट इज इक्वल टू डी टी बाई टू, है ना। एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी बाई टू। एंड अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर व्हाट वी नीड टू डू, मुझे लिमिट भी चेंज करनी है ना। तो साथ में मुझे लिमिट भी चेंज करनी है, जैसे व्हेन x इक्वल टू 0, बराबर x की वैल्यू जब 0 होगी एंड x की वैल्यू 1 है, बराबर। तो व्हेन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, दोनों के लिए t की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सिंपल है ना, 0 स्क्वायर मतलब 0। एंड अगर x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1। सो यूजिंग x वी कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ t बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, है ना। जहाँ से हमने एज्यूम किया है वहाँ से हमको t की वैल्यू मिल जाएगी, नई लिमिट। जैसे यहाँ पे तो नया लिमिट का फॉर्मेट वही बना, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना। हर बार ऐसा नहीं होगा कि भाई जो नई लिमिट आती है, न्यू लिमिट विल नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड लिमिट, है ना। ये हमारी ओल्ड लिमिट है 0 to 1 और ये हमारी नई लिमिट है t के फॉर्म में, ठीक है। सो इफ वी कैन कन्वर्ट, लिमिट विल बी 0 to 1, नई लिमिट 0 to 1 है। फिर x dx की जगह मैं लिख देता हूँ dt बाई टू इंटू ई रेस टू टी, ठीक है। नाउ ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, बाहर 1/2 रख देता हूँ, लिमिट इज 0 to 1। सो द आंसर विल बी e raised to 1 माइनस e raised to 0, दैट इज e माइनस e raised to, किसी का भी पावर 0 होगा तो आंसर 1, सो e माइनस 1/2। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 1 to 2 5x square by x square plus 4x plus 3। okay, so in this question how we can solve the answer, जैसे यहाँ पे ऊपर भी 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है, देखो ऊपर भी 2 पावर, नीचे भी 2 पावर। तो अगर दोनों क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हैं तो हम डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए तो कोई प्रोसीजर हमने देखी नहीं है, बराबर। बट अगर ऐसा मिल जाता है बाई चांस, तो हमको क्या करना है, नीचे वाले का फॉर्मेट ऊपर क्रिएट कर दो, नीचे वाले का फॉर्मेट ऊपर क्रिएट कर लो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो 5 को तो बाहर निकाल लेता हूँ मैं पहले, 1 to 2 लिमिट, बराबर। 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 5 बाहर निकल गया और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, 4x + 3 ऐड कर दिया एंड 4x + 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय वही चीज़ जो भी है वो x² + 4x + 3, ठीक है ना भाई। और कुछ नहीं किया, 4x + 3 ऐड कर दिया, 4x + 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो दैट अब डिनोमिनेटर सेपरेशन करने के टाइम, ये देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा, देखो। तो ये तो इजी हो गया ना, 1 माइनस 4x + 3 बाई x² + 4x + 3 dx, है ना। ये तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया ना। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू सॉल्व दिस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म and then based on that we need to find the answer of integration and then giving limit will give you answer for this question 16। okay, but ऐसे ही नहीं, चलो मैं करवाता ही हूँ, डोंट वरी। ओके, इसका इंटीग्रेशन अलग से फाइंड करते हैं, ठीक है, अलग से फाइंड करते हैं। से लेट I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 3 बाई x² + 4x + 3 dx। सो बार बार ये मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है ना। अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ता है हमको, न्यूमरेटर 4x + 3 इक्वल टू लीनियर टर्म इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे यहाँ पे लिख लेना होता है, आपको याद हो तो x² + 4x + 3 का डिफ्रेंशिएशन 2x + 4, फिर अगर याद हो तो x का कोफिशिएंट डिवाइड कर लो, इस x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है।
सो वट एवर वी गेट दैट इज 4/2, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो 2 है अल्टीमेटली। ठीक है, ये 2 है, तो ये 2 इंटू 2 मतलब 4x, तो ये 4x तो क्रिएट हो गया, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये एक्स्ट्रा 2 इंटू 4 विच इज 8, तो ये एक्स्ट्रा 8 बन गया, तो लेट मी पुट -8। ठीक है, एंड देन वट एवर कॉन्स्टेंट आर हियर शुड बी पुट ओवर हियर। सो नाउ इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो लास्ट में वापस यही मिल जाएगा आपको 4x + 3। ओके, सो दिस शुड बी रिटन एज दिस वन, है ना। इसको इस तरह से लिख लो, 2 इंटू 2x + 4 -5। okay, let me put this value 4x + 3 like this in this integration. So what we get, I1 = इंटीग्रेशन, अभी लिमिट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इसको अलग से एज्यूम किया है, इसको इंटीग्रेट करके फाइनली मैं इसका आंसर यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, सो ऊपर न्यूमरेटर बन गया 2 इंटू 2x + 4 -5, 2 इंटू 2x + 4 -5। अगर आपको याद हो तो इसके बाद का स्टेप क्या होता है, 2 इंटू 2x + 4 -5, उसके बाद का स्टेप डिनोमिनेटर सेपरेशन का ही होता है। सो लेट मी सेपरेट डिनोमिनेटर टू बोथ द टर्म डायरेक्टली, है ना। मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये तो हाँ 2 इंटू 2x + 4x, तो इसके डिवाइडेड बाई x + 4x + 3 -5/x² + 4x + 3, है ना। और ये भी चीज़ है कि यहाँ पे जो x² + 4x + 3 मुझे लिखना है, उसमें परफेक्ट स्क्वायर बना के ही मुझे लिखना है, एनी हाउ आगे बढ़ाना है। सो लेट मी क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर फॉर दिस वन। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, x + 2 होल स्क्वायर + 3 - 4। ठीक है, चलो बाहर dx। तो यहाँ पे मैंने 1-2 स्टेप काट लिए, बट आपको पता है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, इसलिए आप आराम से समझ सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी मेथड एक बार वापस रिवाइज कर लो, 3-4 क्वेश्चन देख लो वापस एक बार, सो दैट यू कैन इजीली गेट द आइडिया दैट मैं यहाँ पे कैसे फास्ट काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो गया, ये है इसका डिफ्रेंशिएशन, है ना। क्या है डिफ्रेंशिएशन इसका, दिस वन इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो फाइनली व्हाट आई कैन से, 2 इंटीग्रेशन 2, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अगर ये है तो log mod डिनोमिनेटर, तो ये हो गया काम मेरा फर्स्ट स्टेप का। -5 टाइम ये हो गया 1/x + 2 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर इंटू dx। इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं वापस, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, दिस वन इज एज इट इज x² + 4x + 3 -5 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ना, 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या है, 1/2a, a मतलब 1, है ना। सो 1/2a log mod x की जगह x + 2 लिखना है, x + 2a, x - a डिवाइड बाई दिस इज x अगेन plus a। okay, so this is what the integration finally। now if you put all this answer, all this मतलब all this step over here, यहाँ पे अगर मैं रख दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, फाइनली देखो I = 1 का इंटीग्रेशन x, 5 बाहर आउटसाइड एज इट इज, ये 5 बाहर आउटसाइड एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ये पूरा का पूरा स्टेप, माइनस में ये पूरा का पूरा स्टेप आएगा ना, तो अल्टीमेटली ये दोनों को माइनस मिलेगा। सो दिस फर्स्ट स्टेप बिकम नेगेटिव, है ना। तो ये हो गया -2 log x² + 4x + 3। ठीक है, और ये सेकंड स्टेप बन जाएगा पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा +5/2 log, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या होगा भाई इसका, नीचे वाले का न्यूमरेटर का x + 2 - 1 बिकम x + 1, एंड नीचे हो जाएगा x + 3। लिमिट विल बी 0 to 1 आई थिंक, नहीं 1 to 2, ओके 1 to 2, लिमिट विल बी 1 to 2। ठीक है, नाउ लेट मी गिव द लिमिट। अब मैं लिमिट दे देता हूं, चलो आंसर में। पहले मैं ऊपर की लिमिट रखता हूं 2 माइनस, ठीक है 2 माइनस
ब्रैकेट में बड़ा सा देता हूँ, 2 माइनस 2 लॉग, यहाँ पे 2 दे है तो 2 4 प्लस 4 2 जा 8, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 5/2 लॉग मोड 2 प्लस 1 3/5, 3/5 बराबर माइनस, अब नीचे की लिमिट देने पे 1 माइनस 2 लॉग 1 प्लस 4 प्लस 3 विच इज 8 प्लस 5/2 लॉग 2/4, ठीक है, 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। चलो, तो अब मुझे लग रहा है ये आंसर तो बन गया, बट एनी हाउ यू नो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा लगता है मुझे, फिर भी चलो करना तो पड़ेगा ही, है ना। जैसे ये 2 माइनस 1 विच इज़ 1 है ना, 1, फिर 2 log 15 माइनस 2 log 15 माइनस 2 log 8, कोई रिलेशन नहीं है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करें, ऐसे ही रहने दे क्या। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाए, ये 2 and 1 का सब्ट्रैक्शन तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। दैन ये दोनों टर्म साथ में रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 log 15 प्लस 2 log 8, मतलब हो जाएगा 2 कॉमन निकालने पे log 8 माइनस log 15, सो दैट बिकम प्लस 2 log 8/15, ठीक है। एंड देन ये दोनों में 5/2 कॉमन निकाल लूँ सपोज, तो उसमें बनेगा log 3/5 माइनस log 1/2, है ना, सो इट बिकम log 3/5/1/2 विच इज ये 2 ऊपर जाएगा तो 6/5, ठीक है। सो आई थिंक दिस आंसर वुड बी द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल, ये सबसे फास्ट आंसर मेरा मिला, बराबर। बट इफ यू वांट यू नो इफ यू वांट द आंसर विच इज़ गिवन इन योर बुक, अगर वो आंसर चाहिए तो बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपकी बुक में कुछ ऐसा आंसर दिया है 5 माइनस 5/2 इंटू 9 log 5/5 माइनस log 3/2, तो ये आंसर मिल तो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट वी कैन नॉट गेट इट, बट फॉर देट वी नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। जैसे कि समझ लो पहले 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 प्लस 5 2 10 log 8/15 प्लस 5/2 log 6/5, फिर ये एक पॉजिटिव नेगेटिव में है तो कोई एक टर्म मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, सो लेट मी क्रिएट दिस वन एज नेगेटिव। सो ये नेगेटिव अगर बनाता हूँ तो यहाँ पे 15/8 हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हमको करना पड़ा, जैसे यहाँ पे माइनस 2 log 15 प्लस 2 log 8, उसमें से माइनस 2 कॉमन निकालने पे यहाँ पे पहले से ये बन जाता, माइनस 2 कॉमन निकाला होता तो पहले से ये 15 ऊपर आता, 8 नीचे आता, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन अ प्रायोरिटी बेस। अगर हमको आंसर डिटो टू डिटो जो बुक में है वो लाना होता है तो, ठीक है। नाउ ये बाहर का 5 तो आ गया, बट ये 5/2 कॉमन निकालना है, सो इफ़ आई वांट टू टेक कॉमन 5/2, अच्छा ये मुझे अभी भी मैंने यहाँ पे 5 2 10 और ये 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है, सो यहाँ पे 5 और है एक, ओके। अब इफ अगर मुझे माइनस 5/2 कॉमन निकालना है तो पहले मैं माइनस कॉमन निकाल लिया, 5 कॉमन निकाल लिया, 2 नीचे एक्स्ट्रा डिवाइड मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाला तो ऊपर एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, है ना। सो ऊपर हो जाएगा एक्चुअल में 4 log 15/8। सो मैं मेरे ख्याल से जो देखो 5 इंटू 10 इंटू log 15/8 ऐसा है, ठीक है, माइनस में। सो मैंने क्या कॉमन निकाला, सिर्फ 5 माइनस 5 कॉमन निकाला, एक्स्ट्रा ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके नीचे से 2 कॉमन निकाला, तो बचा क्या, 2 इंटू 2 4 log 15/8, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी 5/2 कॉमन निकाला नेगेटिव में, तो नेगेटिव 5 log 6/5 ऐसा बचेगा, ठीक है। नाउ माइनस 5/2 तो निकल गया कॉमन, अब मुझे ये सब कुछ क्रिएट अगर करना है तो मुझे इसमें मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है,
इन दोनों को मिक्स कर दो, मतलब ये 4 पावर ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 15⁻⁴ डिवाइडेड बाई 8⁻⁴, माइनस इसको भी पावर को ऊपर लेके जाओ तो 6⁵ डिवाइड बाई 5⁵, और इन दोनों को भी मिक्स कर लूँ मैं, log a माइनस log b का रूल अप्लाई कर दूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, log a, और ये डिवीज़न में आएगा ना, डिवीज़न में आएगा a बाई b आएगा, तो ये नीचे डिवाइड में है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर का अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या चाहिए भाई, 5/4 का फॉर्मेट 3/2 का चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आगे लिखते हैं, यहाँ पे 15 का कर दिया मैंने 5⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5⁵ डिवाइडेड बाई 8⁴ का मैंने कर दिया 4⁴ इंटू 2⁴ इंटू 6⁵ बन गया 3⁵ इंटू 2⁵। नाउ यू कैन सी 3⁴ 3⁵ कैंसिल, नीचे एक 3 बचेगा। फिर ऊपर मुझे सी यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट अगर लाना है ना तो मुझे 5�9 क्रिएट करना पड़ेगा। सो ऊपर मुझे 5⁴ इंटू 5⁵ मतलब 5�9 मुझे मिल गया, बराबर। न्यूमरेटर में मुझे 5�9 मिल गया, तो जो मिल गया उसको मैं सेट करते जा रहा हूँ, बराबर। दूसरा नीचे 4�9 क्रिएट करना है, ऊपर 5�9 एंड नीचे ये अगर 9 पावर में अंदर लेके जाओ तो ये log 5�9 डिवाइड बाई 4�9 ऐसा कुछ फॉर्मेट है, तो नीचे 4�9 क्रिएट करना है, तो उसमें से 4⁴ है, ठीक है, 4⁴ है। फिर ये 2⁴ इंटू 2⁵ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा 2�9, और मैं एक 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 2⁻10, 2⁻10 बन जाएगा 2⁻10 बन जाएगा 4⁵, सो ये हो जाएगा 4�9। बट फॉर देट मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई करना पड़े ना, सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग 2 इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा। ओके, सो व्हाट आई कैन से, यहाँ पे मुझे 4⁵, 2⁴, 2⁵ इंटू 2 ये सब मिलके मेरे पास आ गया 4⁵ इंटू 4⁴, ठीक है, ऐसा मिल गया। सो व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 माइनस 5/2 इंटू लॉग, ऊपर हो गया 5�9 इंटू 2, नीचे हो गया 4�9 इंटू एक सिर्फ 3 बचा, 3, ठीक है। सो अब मेरा आंसर मेरे ख्याल से आ गया है 5/4 का पावर 9 है ना, 5/4 का पावर 9, तो मैंने पावर आगे लिख लिया 9 log 5/4 और प्लस log 2/3, और उसको अगर नेगेटिव में लिखना है, जो बुक में है ऐसा आंसर लिखना है, तो माइनस log 3/2। सो यू कैन गेट योर आंसर, आपका आंसर एग्जैक्टली मिल जाएगा, बुक का आंसर भी मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसे कन्वर्ट करते करते बनाओगे, है ना। इसलिए मैंने बताया था कि ये जो आंसर है ना, ये वाला आंसर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये आंसर डायरेक्टली हमारे पास जो ये मेथड से हमने बनाया वो ही आंसर है, एंड फ्रॉम दिस आंसर ओनली वी कैन गेट दिस आंसर। वैसे ये आंसर बनाने के लिए बुक वालों ने कुछ अलग मेथड की होगी, आई डोंट नो, बट हमारा ये आंसर एंड ये आंसर दोनों सिमिलर ही है, एक ही है, बराबर, बट अलग अलग फॉर्मेट में है, ठीक है। सो हमने कोई गलती तो नहीं की है क्वेश्चन में, इसलिए इसीलिए हमारा ये वाला फॉर्म जो है ना, इसके पर्टिकुलर आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की ना, इसलिए मैंने इसका आंसर ये जो बुक के आंसर से कंपेयर करने की कोशिश की, है ना। वैसे एग्जाम में तो आपको पता नहीं होगा बुक में कौन सा, मतलब एग्जामिनर ने कौन सा आंसर सोचा होगा। सो आप अपने हिसाब से आंसर कोई भी जो ईजीएस्ट फॉर्म बने, सिंप्लीफाइड फॉर्म बने, वो आंसर लास्ट में रख के आ जाना, है ना। फिर वो लोग सोचेंगे, फिर उसके ऊपर छोड़ देना, एंड भगवान के ऊपर छोड़ देना, गॉड के ऊपर, कि भाई हाँ हमने जो भी आंसर बनाया है बाय चांस वो आंसर एग्जामिनर को एटलीस्ट पता चले कि ये आंसर सही है ना, एटलीस्ट ही कैन प्रूव हिमसेल्फ, वो अपने खुद के दिमाग से सोच सके कि भाई हाँ ये जो आंसर बच्चे ने बनाया है, स्टूडेंट ने बनाया है पेपर में, वो सही ही है
है ना। दैट इज अप टू एग्जामिनर, वो एग्जामिनर पर डिपेंड है। कभी कभी ऐसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं तब ऐसा होगा, ठीक है। सो यू नो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 16। नाउ लेट मी सॉल्व क्वेश्चन 17। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, ये तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कर लेता हूँ। चलो 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, एक्स क्यूब का एक्स रेज़ टू 4/4 प्लस 2 का 2x, लिमिट विल बी 0 to π/4। इफ वी गिव द लिमिट टू 10 π/4 मतलब 1 प्लस x रेज़ टू 4 मतलब π/4 रेज़ टू 4 मतलब π/4 पाई रेज़ टू 4, नीचे 4 रेज़ टू 4 और एक्स्ट्रा 4 तो है ही, दैट इज 4 रेज़ टू 5, ठीक है। प्लस 2 इंटू π/4 विच इज π/2 माइनस 0 0 0, तीनों में 0 देने पे 10 0 0, एक्स रेज़ टू 4 0, 2x भी 0, सो आंसर विल बी माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। सो दिस इज व्हाट योर आंसर है ना। आई डोंट थिंक सो वी नीड एनी सिंप्लीफिकेशन स्टेप फॉर दिस। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। वेल ये क्वेश्चन देख के जनरली बाई चांस बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि चलो साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 ऐसा करके सोच ले, बराबर। वैसे ऐसे सोचेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये 1/2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये माइनस 1/2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, बराबर। तो ये 1/2 कैंसिल, देन ये माइनस कोस एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 अल्टीमेटली माइनस कोस एक्स हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला है वो माइनस कोस एक्स का है। सो आफ्टर दिस मच ऑफ कन्वर्जेशन समटाइम्स स्टूडेंट्स कम्स टू नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माइनस कोस एक्स, और किसी बच्चे को डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये तो फॉर्मूला है ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है कॉस 2x, बराबर। तो डेफिनेटली कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो दिया है वो एग्जैक्टली उल्टा है, यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव है, बराबर, ये टर्म नेगेटिव और ये टर्म पॉजिटिव है, तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला में नेगेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव कॉस एक्स, और वो आपको दिख जाना चाहिए। अगर दिख जाता है तो आपको ये दो तीन स्टेप जो है वो आपके बच जाएंगे, है ना। जनरली नहीं, वरना क्या करते हैं स्टूडेंट, साइन स्क्वायर देख के कॉस स्क्वायर देख के बस अप्लाई करना चालू कर देते हुए। साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस, इसका डबल बाई 2, इसका डबल एंगल बाई 2, एंड कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 मतलब x बाई 2 का x बाई 2। सो लाइक दिस जनरली स्टूडेंट्स सोच लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। चलो माइनस आउटसाइड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट विल बी 0 to पाई। नाउ इफ वी गिव लिमिट साइन पाई भी 0 है, साइन 0 भी 0 है, तो फाइनली आंसर 0 हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इजी है, मैंने बताया था। भले ही लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, बट यहाँ पे नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसमें मिडल टर्म नहीं है, मतलब हम उसको वो मेथड 1 से नहीं जाएंगे, डायरेक्टली सेपरेट कर लेंगे। 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड 6x को मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 2x, ताकि मुझे नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन एग्जैक्टली दिखाई दे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप आफ्टर डिनोमिनेटर सेपरेशन। Okay, now what I can see 0 to 2 limit, yes, what I can see, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो 3 एज इट इज log mod डिनोमिनेटर प्लस 3 इंटू ये 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ये 2 स्क्वायर है, तो फॉर्मूला इज 1 अपन ए tan इनवर्स x बाई ए, सो 1 अपन ए tan इनवर्स x बाई 2, ठीक है। प्लस सी की आदत जनरली होती है, प्लस सी लिख मत लेना, क्योंकि मुझे प्लस सी की वैसे ज़रूरत है नहीं, प्लस सी मुझे डिफाइनेट इंटीग्रल में रखना नहीं है, आई डोंट नीड प्लस सी इन डिफाइनेट इंटीग्रल। ओके, सो लेट मी पुट द लिमिट 3 log 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 2 रखने पे, है ना, x की जगह 2 रखने पे 2/2 1, सो tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4, सो 3/2 इंटू π/4 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 0 रखने पे log 4 एंड tan इनवर्स 0 0, सो प्लस 0, ठीक है, प्लस 0।
नाउ फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 3 log 8 माइनस 3 log 4, 3 log 8 माइनस 3 log 4 प्लस 3 पाई बाई 8, इन दोनों में से 3 कॉमन निकालूंगा तो बन जाएगा 3 इंटू लॉग 8 माइनस log 4 विच इज log 8 बाई 4 विच इज log 2. सो बन जाएगा 3 log 2 प्लस 3 पाई बाई 8, and I think it is supposed to be your answer for this question. Okay, and let me solve question number 20. Well, in question 20, to solve this first one, x into e raised to x, we need UV rule, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बिकॉज यहाँ पे x है, e raised to x है, डेफिनेटली दो अलग अलग तरह के फंक्शन है. सो लिएट रूल के हिसाब से एल्जेब्रिक टर्म है, e raised to x है, तो डेफिनेटली एल्जेब्रिक टर्म को u करेंगे. सो लेट मी डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला. अच्छा, इसमें क्या होता है पता है आपको, यूवी रूल अप्लाई करने के टाइम whenever we are applying UV rule in definite integration. See, definite integration में जब भी आप UV rule अप्लाई करते हो तो क्या करते हो, u इंटीग्रेशन v dx ऐसा फॉर्मूला है ना, माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन v dx इंटू dx ऐसा फॉर्मूला है. सो व्हाट वी नीड टू डू, हमको यहाँ पे जो भी आंसर आए उसको लिमिट दे देनी है, एंड इसमें इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं देनी है, वरना बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट दे देते हैं बीच में भी, और मुझे यहाँ पे लिमिट देनी है, यहाँ पे मुझे लिमिट देनी है. अल्टीमेटली फाइनल इंटीग्रेशन फाइंड करके फिर लिमिट दे दोगे तो भी चलेगा, है ना. फाइनल इंटीग्रेशन फाइंड करके फिर लिमिट दे दोगे तो भी चलेगा. ओके, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर लिया, इसमें भी इंटीग्रेशन कर लिया, उसके बाद फिर लिमिट दे दोगे तो भी चल जाएगा. बट आदत बनाओ कि पहले वाले टर्म में इंटीग्रेशन लिमिट दे दी, फिर दूसरे वाले टर्म में लिमिट दे दी. इट्स ओके, मतलब दोनों तरीके से चल जाएगा. फाइनली आंसर जो बनेगा उसमें लिमिट दो, या फिर पहले वाले का आंसर का लिमिट एंड दूसरे वाले आंसर का लिमिट. ओके, मतलब जैसे यहाँ पे पहले वाले आंसर में x एज इट इज e raised to x का इंटीग्रेशन लाइक दिस, बराबर. तो यहाँ पे ही सिर्फ लिमिट नहीं देनी है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, बराबर. लिमिट आपको ये एक्चुअल में बाहर देनी है, ऐसे 0 to 1. तो ये आंसर बनाने के बाद जो भी फंक्शन बनेगा, जैसे यहाँ पे बन जाता है e raised to x, उसमें लिमिट देनी है ऐसे, ठीक है. माइनस ये फॉर्मूला अभी तक खत्म नहीं हुआ, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन जिसमें आप लिमिट लिख सकते हो बाहर 0 to 1. यहाँ पे नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पे लिखोगे तो सिर्फ लिमिट आपको इसके लिए ही मिलेगी, इसके लिए लिमिट नहीं मिलेगी. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी, और उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, सिर्फ डायरेक्टली बाहर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाहर लिमिट लिखी है, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का जो भी आंसर है उसके बाद वहाँ पे लिमिट लगानी है. फिर माइनस करके यहाँ पे लिमिट यहाँ लगा दोगे तो चल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन e raised to x dx इंटू dx लाइक दिस, प्लस, बराबर. ये साइन पाई एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 इंटू एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड करना है, ठीक है. एंड उसमें भी लिमिट होगी 0 to 1, ठीक है, 0 to 1. ओके, तो चलो अब पहले का सिंप्लीफिकेशन तो मैंने करके रखा है, लिमिट 0 to 1 दे दी है, माइनस यहाँ पे होगा क्या, देखो 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन e raised to x, मतलब अल्टीमेटली e raised to x ही हुआ, ये है ना, e raised to x ही हुआ. तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e raised to x ही होता है, तो e raised to x एंड लिमिट आउटसाइड 0 to 1, माइनस यहाँ पे एज इट इज 5/4 बाहर निकलेगा, तो अल्टीमेटली ऊपर जाने पे 4/π इंटू कॉस पाई एक्स बाई 4 लिमिट 0 to 1. अब लिमिट ले देते हैं, चलो. x की जगह 1 रखने पे 1 e raised to 1 दैट इज 1 इंटू e raised to 1 दैट इज 1 इंटू e, माइनस 0, ओके वो निकल गया, चलो, मतलब माइनस 0 इंटू e raised to 0 तो 0 ही हो जाएगा, दैट्स वाई आई डोंट नीड टू राइट लोअर लिमिट. फिर यहाँ पे e raised to 1 माइनस e raised to 0 माइनस 4/π कॉस x की जगह 1 रखने पे cos π/4 विच इज 1/√2 माइनस cos 0 1. सो योर आंसर वुड बी
देखो ये ई हो जाएगा, दिस ई इस तरह के, मतलब ये ई ये वाले ई से कैंसिल हो जाएगा, दिस ई विल बी कैंसिल विद दिस ई, बचेगा क्या, माइनस माइनस ई रेस टू माइनस माइनस प्लस ई रेस टू 0 मतलब 1 होता है, सो 1 माइनस 4/π into 1/√2 minus 1. So this could be your answer, है ना? ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन 20 का सॉल्यूशन। ओके, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं 21 22, तो फटाफट से मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। चलो, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x, लिमिट 1 से √3, सो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 विच इज π/3 माइनस π/4, कितना होता है भाई, π/3 माइनस π/4, 60 माइनस 45 विच इज 15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब π/12 आई थिंक, यस, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन 22 में देखो, ये हो गया 1/2² प्लस 3x होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है, बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1/a, a मतलब 2, 1/a, फिर x का कोफिशिएंट भी डिवाइड करना है, दैट इज 3, इंटू tan इनवर्स 3x/2, एंड लेट मी गिव लिमिट 0 से लेके 2/3। सो फाइनली आंसर बन जाएगा 1/6 एज इट इज। यहाँ पे लिमिट देने पे tan इनवर्स 3/2 इंटू 2/3, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, दैट इज 0। सो आंसर विल बी tan इनवर्स 1 माइनस 0 विच इज π/4 इंटू 1/6 तो था ही, so it become π/24, option C. Okay, so with this we have completed all the question of exercise I think 7.9। ओके, तो 7.9 हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे, है ना, आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको सॉल्व करनी है, सो दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।